Good morning, students. Today's part is above principles. The question will be like this: explain above principle of filling atomic orbitals. Explain above principle of filling atomic orbitals. Above principle gives the sequence in which various orbitals are filled with the electrons. Above principles gives the sequence in which various orbitals are filled with electrons. The different orbitals like SPDF orbitals and the electrons are enters into different available orbitals. In the ground state of an atom, in the ground state of an atom, the orbitals are filled with electrons based on the orbitals are filled with electrons based on A. Increasing order of energies of orbitals. First one is increasing order of energies of orbitals. Second one, Pauli's exclusion principle. Third one, Hund's rule of maximum multiplicity. In the ground state of an atom, the orbitals are filled with the electrons based on एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है तब ऑर्बिटल फील्ड करने के लिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होने के लिए किसकी जरूरत होती है? पहला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। दूसरा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। The increasing order of energies of orbitals are orbitals are filled in the order of increasing value of n plus L. Increasing order of energies of orbitals based on orbitals are filled in the order of increasing value of n plus L. In cases where the two orbitals have the same values, of n plus L, the orbital with lower value of n filled first. The orbital with lower value of n filled plus n means principal quantum number. The orbital with lower value of n filled first. अगर n plus L की वैल्यू दो ऑर्बिटल की सेम आती है तो जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होगी, लोअर होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर करेंगे। The increasing order of energy of different orbitals in a multi-electron atom is, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्बिटल की यहाँ पर दिखाई हुई है, ये डायग्राम भी दिखाई है, एरो देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑर्बिटल 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, then p orbital 2p 3p 4p 5p 6p 7p, then d orbital 3d 4d 5d 6d 7d, and then f orbital 4f 5f 6f 7f. s orbital starts from first shell, that is k shell. p orbital starts from second shell, L shell. d orbital starts from third shell, that is M shell, and f orbital starts from fourth shell, N shell. So that's why s orbital starts from 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s. p orbital starts from second shell, it is starting from second shell, so that's why 2p 3p 1p ऑर्बिटल इज नॉट एग्जिस्ट, 1p ऑर्बिटल नहीं होता क्योंकि p ऑर्बिटल सेकेंड शेल से स्टार्ट होता है। सो दैट्स वाई 2p 3p 4p 5p 6p 7p। d ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड शेल से, इसलिए 3d 4d 5d 6d 7d। 1d 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं होता। और f ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है? फोर्थ शेल से, n इज इक्वल टू 4, सो दैट्स वाई 4f 5f 6f 7f. So 1f 2f and 3f orbitals are not exist. Okay, so therefore the increasing order of energy of different orbitals in a multi-electron atom is 1s having lowest energy, then 2s is less than 2p is less than 3s, 3s is less than 3p, 3p is less than 4s, 4s is less than 3d, 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s,
एंड सो ऑन. ओके, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ पर डायग्राम निकालिए, एरो देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है. ओके, तो ये डायग्राम से इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर दिखाइए. सो first electrons enters into which orbital? 1s orbital. Then electron, if 1s orbital is filled, then electron enters into 2s orbital. 2s orbital, s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन. s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं. p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई होते हैं? 6. px में 2, py में 2 और pz में 2. p orbital has maximum capacity of 6 electrons. 2 electrons occupy in px orbital, 2 electrons occupy in py orbital, and 2 electrons occupy in pz orbital. So that's why the total capacity of p subshell is 6 electron. d subshell की maximum capacity कितनी होती है? 10 electrons. total orbital कितने हैं d के? 5. dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर. dxy में 2 इलेक्ट्रॉन, dyz में 2 इलेक्ट्रॉन, dxz में 2 इलेक्ट्रॉन, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन, dz स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10. ऑफ और f सबशेल की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? 14, बिकॉज ऑफ f ऑर्बिटल्स हैज 7 ओरिएंटेशन. f ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन कितने होते हैं? 7. ओके, सो टोटल 7. हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 2. एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मीन्स +1 हाफ और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स -1 हाफ. ओके, सो दिस इज द इंक्रीजिंग order of energy of different orbitals in the multi-electron atom. Okay, next one, state and explain Pauli's exclusion principle. State and explain Pauli's exclusion principle. First of all, statement: no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. No 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. What are the 4 quantum numbers? Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin orbital quantum number. So no 2 electrons in an atom. किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती. 3 क्वांटम नंबर सेम होते हैं लेकिन चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होना ही चाहिए. उसे कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स और ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल. अभी मैंने बताया ईच ऑर्बिटल हैज कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. So p subshell has capacity of 6 electrons, px2, py2 and pz2. px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन. So only 2 electrons can occupy the same orbital and they must have opposite spins. Only 2 electrons can occupy the same orbital. 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई होते हैं लेकिन उस 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होती है? अपोजिट. एक होता है क्लॉकवाइज तो दूसरा कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज. +1 हाफ. क्लॉकवाइज मीन्स +1 हाफ एंड एंटी क्लॉकवाइज मीन्स -1 हाफ. +1 हाफ को कैसे दिखाएंगे? पॉइंटिंग अप, एरो ऊपर दिखाना है. और -1 हाफ को कैसे दिखाना है? पॉइंटिंग डाउन, नीचे एरो दिखाना है. ओके, सो दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. Second point, the capacity of an orbital to accommodate electron is decided by Pauli's exclusion principle. The capacity of an orbital to accommodate electrons, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन accommodate होते हैं वो किससे डिसाइड किया जाता है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से डिसाइड किया जाता है. The capacity of an orbital to accommodate electron is decided by Pauli's exclusion principle. According to Pauli's exclusion principle, for an electron belonging to the same orbital, according to this principle, for an electron belonging to the same orbital, the spin quantum number must be different. The spin quantum number must be different since the other from the spin quantum number must be different since the other 3 quantum numbers are the same. बाकी के 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे लेकिन
स्पिन क्वांटम नंबर कैसे होगा, डिफरेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा. सो द थ्री क्वांटम नंबर्स आर सेम अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द थ्री क्वांटम नंबर्स आर सेम बट the spin quantum number is different. Spin quantum number is different. Okay, so the spin quantum number can have two values, plus 1/2 and minus 1/2. यहाँ पर minus 1/2 नहीं दिख रहा है. फिर से थर्ड पॉइंट क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फॉर एन इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्बिटल द स्पिन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट सिंस द अदर थ्री क्वांटम नंबर्स आर द सेम. द स्पिन क्वांटम नंबर्स कैन हैव टू वैल्यूज. स्पिन क्वांटम नंबर के कौन से दो वैल्यूज हैं, प्लस 1/2 और माइनस 1/2. प्लस 1/2 मीन्स pointing up and minus 1/2 means pointing down. Okay, so example, consider helium atom with electronic configuration. Electronic configuration of helium, helium containing 2 electrons. Atomic number of helium is 2, so that's why helium containing 2 electrons. So electronic configuration of helium is 1s2, 2 electrons. इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर एंट्री करेंगे, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल. सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन है, 1s. अभी ऑर्डर देखिए हमने, सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन है, 1s. तो दो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, ऑर्बिटल. द कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन. किसी भी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन. सो एस ऑर्बिटल हैज कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. पी सबशेल हैज कैपेसिटी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. डी सबशेल हैज कैपेसिटी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स. एफ सबशेल हैज कैपेसिटी ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है. हर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, 2. तो पी में पी एक्स पी वाई पी जेड, 2 + 2 + 2 दैट इज 6. इसीलिए पी सबशेल की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी 6. डी में 5 ऑर्बिटल है. डी सबशेल में ऑर्बिटल कितने हैं, 5. डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर. तो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2. सो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 10. और एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स कितने हैं, 7. हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2. सो 7 × 2 = 14. 14 कैपेसिटी ऑफ एफ सबशेल. सो 1s orbital, s orbital has only one orientation, that is s orbital. So s orbital की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, s orbital में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए. So for the 2 electrons in 1s orbital the 4 quantum numbers are as follow. 1s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, देखो. इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन. क्वांटम नंबर, पहला क्वांटम नंबर n है, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मीन्स azimuthal quantum number, ml means magnetic quantum number, and ms means spin orbital quantum number. Okay, so what is the value of n for first electron, n is equal to 1, 1s, so 1. second electron के लिए 1 s है. l is equal to, for s subshell l is equal to 0. s subshell के लिए l की वैल्यू 0 होती है. पहले इलेक्ट्रॉन की s की वैल्यू 0, दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी s की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन s सबशेल में है. ml इज इक्वल टू, फॉर s 2l + 1 ना, 2l + 1. सो l इज इक्वल टू 0, 2 × 0 दैट इज 0 + 1 दैट इज 1. सो ml इज इक्वल टू 0. सो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 0, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 0. और पहले इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, क्लॉकवाइज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन होगा, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर, set of values of quantum number are n is equal to 1, l is equal to 0, ml is equal to 0 and ms is equal to +1/2. पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1 0 0 +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 1 0 0 -1/2. तो 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन 4th क्वांटम नंबर कैसे है, डिफरेंट है. ओके, सो दिस इज द टेबल for 2 electrons present in helium. Thus, in an atom, any 2 electrons can have the same 3 quantum numbers, but the 4th quantum number must be different. कौन से भी 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होती है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर कैसे आता है, डिफरेंट. सो दस इन एन एटम एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम 3 क्वांटम नंबर्स, बट द 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट. दिस लीड्स टू द conclusion that an orbital, this for values of 4 quantum number gives the conclusion, that leads to the conclusion that an orbital can accommodate maximum of 2 electrons. Means this indicates that any orbital can accommodate only 2 electrons. कोई भी orbital होगा, उस orbital में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, maximum of 2 electrons.
This leads to the conclusion that an orbital can accommodate maximum of 2 electrons, and if it has 2 electrons, they must have opposite spins. अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन कैसी होगी? अपोजिट होगी. एक होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज, +1/2 एंड -1/2. ओके, सो दिस इज Pauli's exclusion principle. Next one is state Hund's rule of maximum multiplicity with suitable example. Hund's rule, ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? डिफरेंट अवेलेबल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए इन रूल का इस्तेमाल किया जाता है. अभी देखा हमने, पहले देखा इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इंक्रीजिंग एनर्जी ए क्या है यहाँ पर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल. दूसरा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. सो हंट्स रूल. नाउ स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या है? स्टेट हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल. हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल. स्टेटमेंट, pairing of electrons in the orbitals, pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell, does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each. Once again, statement जरा difficult है. Pairing of electrons in the orbitals, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर करते वक्त पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल. बिलोंग यहाँ पर पी सबशेल दिया है, देखो पहला है पी एक्स, दूसरा है पी वाई, तीसरा है पी जेड. ओके, मैं नीचे समझाता हूँ. पहले स्टेटमेंट क्या है देखो. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट ऑकर अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच. फॉर एग्जाम्पल, according to Hund's rule, each of the 3 parallel spins before any, according to Hund's rule, each of the 3 degenerate p orbitals, sorry यहाँ पर गलती हो गई. According to Hund's rule, each of the 3 degenerate p orbitals, which degenerate p orbitals? py, px, py and pz. According to Hund's rule, each of the 3 degenerate p orbitals must got 1 electron of parallel spin before any one of them receive the second electron of opposite spin. अब यहां पर एक्सप्लेन करता हूं. देखो, p सबशेल के ऑर्बिटल कितने हैं? 3. पहला है px, दूसरा है py, तीसरा है pz. तो px में, py में, pz में तीनों ऑर्बिटल में जब तक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फील नहीं होते तब तक उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फील नहीं किए जा सकते. px, py, pz में इलेक्ट्रॉन फील्ड करते वक्त px का पहला इलेक्ट्रॉन px में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन py में जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन pz में. तीनों के डायरेक्शन कैसे होने चाहिए? पैरेलल स्पिन में, मींस क्लॉकवाइज में. So therefore the configuration of 4 electrons occupying p orbital is represented as, देखो यहां पर पहले ब्लॉक डायग्राम में कैसे दिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए हैं. पहला इलेक्ट्रॉन 4 में से, समझो p ऑर्बिटल में, p सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4. तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? px में. दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? py में. पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन py में क्लॉकवाइज जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन pz में भी क्लॉकवाइज ही जाएगा, +1/2 नोटेशन दिख रहा है. और चौथा इलेक्ट्रॉन भरते वक्त कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? px में. कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो 4 इलेक्ट्रॉन पहली डायग्राम दिए है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए हैं? पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज py में, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज pz में. अभी चौथा इलेक्ट्रॉन बच गया है, वो किस में जाएगा? px में. तीनों क्लॉकवाइज पैरेलल स्पिन से भर जाने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, किसमें? पहले ऑर्बिटल में. ओके, एंड नॉट एज, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं भर सकते. पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज px में ही, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और चौथा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे ऑर्बिटल भरे नहीं जाते. दिस इज हंट्स रूल.
इसे कहते हैं हंट्स रूल. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? अगेन स्टेटमेंट, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल. तीनों सबशेल, तीनों ऑर्बिटल एक ही सबशेल के हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, एक ही सबशेल है. कौन सा सबशेल है? पी. ओके. Pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each. Each orbital has got one electron each. हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फील्ड होने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है. ओके. सो फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, ईच ऑफ द थ्री degenerate p orbital must got one electron of parallel spin before any one of them receive the second electron of opposite spin. Okay. Therefore, the configuration of 4 electrons occupying p orbital is represented as, this is the diagrammatic representation. So therefore, as a result of Hund's rule, the atom with fully filled and half filled set of degenerate orbitals has extra stability. अगर ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड होगा, मीन्स पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, फुल्ली फील्ड हो गया. पी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाफ फील्ड होगा. हाफ फील्ड, पी के हाफ फील्ड क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन. पी के फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन. सो एज अ रिजल्ट ऑफ हंट्स रूल, द एटम विथ फुल्ली फील्ड एंड हाफ फील्ड सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स has extra stability. Okay, so this is Hund's rule of maximum multiplicity and the suitable example is given. Now what is electronic configuration? Electronic configuration, the distribution of electrons in different available orbitals like spdf orbitals are called electronic configuration. This is the simple definition. The distribution of electrons in different available orbitals like spdf orbitals are called electronic configuration. This is the general definition of electronic configuration. Now what is the definition in textbook? Textbook में definition क्या है? देखो, electronic configuration of an atom is defined as, electronic configuration of an atom is defined as the distribution of its electron in orbitals. The distribution of its electrons in orbitals are called electronic configuration. Now what are the two methods representing electronic configuration of an atom? What are the two methods? दो मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. What are the two methods representing the electronic configuration of an atom? Electronic configuration of an atom. First method is orbital notation. Orbital notation, it can be indicated by ns, first of all s orbital, then p, then d orbital. ns raised to a, np raised to b and nd raised to c. n is the principal quantum number. n का मतलब क्या है? पर n s के लिए भी n दिया है, p के लिए भी n दिया है और d के लिए भी n दिया है. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5. k l m n o principal shell quantum number. So n s raised to a, np raised to b, nd raised to c. In the orbital notation method, a shell is represented by the principal quantum number. कोई भी शेल किससे इंडिकेट किया जाता है? प्रिंसिपल n से, इसलिए n दिया है. Followed by the respective symbol of the subshell. Subshell कौन सा है? s, p, d, ns, np, nd. In the orbital notation method, a shell is represented by the principal quantum number n followed by the respective symbol of the subshell. The number of electrons occupying that subshell being written as subscript on right hand side. Subscript दिए देखो, a, small b, small d. That is the number of electrons. The number of electrons occupying that subshell being written as subscript on right side of the symbol. Okay, this is the first method representing electronic configuration. Second one, orbital diagram. In the orbital diagram method, each orbital in a subshell is represented by a box. यहाँ पर ऊपर दिया है देखो बॉक्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन फील किए हैं. पहला इलेक्ट्रॉन x में, दूसरा y में, तीसरा z में और चौथा इलेक्ट्रॉन फिर से x में, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में. पहले पूरे क्लॉकवाइज स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरने हैं और
पूरे तीनों ऑर्बिटल क्लॉकवाइज भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भर दिया है. ओके, सो ऑर्बिटल डायग्राम, इन दिस ऑर्बिटल डायग्राम मेथड ईच ऑर्बिटल इन अ सब शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. एरो सही दिखाया, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा है ना. सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो क्लॉकवाइज फॉर अप स्पिन एंड डाउन स्पिन. क्लॉकवाइज मतलब अप स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स डाउन स्पिन. क्लॉकवाइज मीन्स +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स -1/2 आर प्लेस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस. In this method, all the four quantum numbers of electrons are all the four quantum numbers of electrons are accounted for. All the four quantum numbers of electrons are accounted for 3s 3p 3d. s का एक ही ऑर्बिटल होता है इसलिए एक ही बॉक्स दिखाया. p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सबशेल के 3 ऑर्बिटल इसलिए 3 बॉक्स दिखाया. d के 5 ऑर्बिटल होते हैं. d सबशेल के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5. dxy dyz dxz dx2 y2 एंड dz2. हर ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल है. हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. each orbital containing capacity of 2 electrons. Okay, so therefore consider 2 electrons in 3s orbital. 3s orbital में एक इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? 3s में n इज इक्वल टू 3s के लिए n की वैल्यू क्या आएगी? 3. L की वैल्यू S है ना, L इज इक्वल टू 0 एंड ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा? ML इज इक्वल टू 0 एंड MS इज इक्वल टू +1. अब क्लॉकवाइज है. और दूसरा कैसे आएगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी क्लॉकवाइज है. N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0, ML इज इक्वल टू 0 बट इलेक्ट्रॉन इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट्स व्हाई MS इज इक्वल टू -1/2. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिए हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन: हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, इलेक्ट्रॉन एक ही है इसलिए क्लॉकवाइज. हेलियम की 2 इलेक्ट्रॉन, हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है. एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2. एस ऑर्बिटल हैज़ कैपेसिटी ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई 3 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. अगला ऑर्बिटल हायर एनर्जी कौन है? 2s. बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा. ओके, बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 है. बेरियम कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, सो देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स: 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन. सो 1s में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, 2s में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन फ्लोरीन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का. द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9. So that's why these 9 electrons are distributed in different orbitals. 1s की कैपेसिटी, s की कैपेसिटी 2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए. 2s, s की कैपेसिटी 2 इसलिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए. बच गए कितने? 9 में से 4 गए, बच गए 5. 5 इलेक्ट्रॉन रह गए. वो 5 इलेक्ट्रॉन, अगला ऑर्बिटल कौन सा है? p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल. p की कैपेसिटी कितनी है? 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 5, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5. 1s में 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. 2p के 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें पहला इलेक्ट्रॉन px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन py में, तीसरा इलेक्ट्रॉन pz में, चौथा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज px में और पांचवा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज py में. ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दिस इज द टुडेज पार्ट. थैंक यू. कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछो. और आपको ये पूरा बाय हार्ट करना है और बाय हार्ट करने के बाद या ये लिख के आपको मुझे सेंड करना है. ओके, थैंक यू.